Welcome students, welcome to the lecture number 12 of chapter number 2, that is functions. Okay, so let us begin. In the previous lecture we have discussed about a concept named as recursion. Okay, and we know that in recursion the main thing is that in the recursion a function call itself. Okay, so the recursion uses the concept of stack with, and you know that what is basically a stack. In the stack you have the concept like you have a storage medium which is open from one end only. Okay, and suppose in that storage medium if you insert a ball, that ball will first go at the bottom. Suppose this ball name is A ball, and when you enter the next ball, that the second ball moves to the one position above the A ball. Suppose this is one is the B ball, and after that if you insert another ball, suppose the third ball is named as C, then it will automatically get inserted at the top. So but when you want to remove the balls, so first you have to remove the ball number, that is C ball number. So in this container the element which is inserted at the last, okay, so last in, yani the element which is inserted at the last will be first out. Okay, so basically we can say that what is a stack? Stack is basically a means of storing the data which follows the pattern of last in and first out. Okay, and now we are going to discuss about the concept of recursion. And as I told you that this recursion concept, okay, this recursion concept basically follows the technique of stack. Okay, so that for implementing the recursion a stack is used, right? So as we have now today we are going to discuss these questions. The first question is that write a function to find sum of first n natural numbers using recursion. Okay, so now today we are going to do it practically, that how this work is going on. All right, so let's begin the session. First of all, I open the Python editor for you, so that we can test the program practically also. Right, yeah, now the Python intermediate mode is open now. So first we have to write the program, then we open the new file. Okay, so the first question that we have to perform is that write a function to find sum of first n natural numbers. Okay, so in this case what is required from us, that suppose if the user has given the value of n as 5, then we have to find the sum of 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Okay, so we have to find the sum of first n natural numbers, right? So we have already discussed the way of doing this question with the help of recursion. So let me just recall all those things. So suppose we have write the name of the function as def, and we call it as addition, right? We call the name of the, we have given the name of the function as addition, and this addition function will accept the value of n from the user. Okay, so what we will do in at the down, that we first ask the user that int enter the, we have to use the input function. So input enter the number of terms. Okay, so we are asking from the user to enter the number of terms is equal to this one. Okay, so once the user gave the number of terms, then
s is equal to, we are calling this function that addition, and we are sending this value of n to the function, so it will return the sum of all those numbers from 1 to n. And when we receive the result in the variable s, then what we will do, we will simply print the sum of first comma, the value of n will be shown, then again comma, natural numbers is equal to, then comma, and after that we will show you the value of s. Okay, so right now we are calling this function, and we have to make this function a recursive function. Okay, now just understand this thing, that the recursion is have some basically a pattern. Okay, and the pattern is that you have to use the concept of if and else. Okay, and in the case of if and else, in if you have to set the condition, last condition. Okay, suppose, and I told you that in case of recursion you have to move from end, right? So how we are going to do it in recursion? First we have to add 5 and 4, then whatever be the result, we have to add that result with, first we have to add 5 and 4, then the result will be added with 3, then the result will be added with 2, and finally with 1. So let's do one thing. This is the end point and this is the starting point. Okay, so we will mention that if the value of n becomes 1, the value of n becomes 1, then we are going to return the value of n. Okay, and if else, in all other cases, what we are going to return, return this n added with the again in this we are calling the function, and we are sending the value of n minus 1 to it. Okay, so एक पैटर्न बन गया यहाँ पे जो आपको ध्यान में रख के चलना है, और वो पैटर्न क्या है, इफ और एल्स का पैटर्न है. ठीक है जी, लास्ट एक्सप्रेशन को उठा लो. सो लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, 5 + 4. सो मान लो अगर मेरे पास n की वैल्यू, अगर सपोज मुझे किसी ने 5 दी है, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मैं लास्ट से चल रहा हूं तो इसका मतलब n प्लस मुझे n माइनस 1 का आंसर ऐड करना होगा. ठीक है, मुझे क्या करना होगा, n प्लस n माइनस 1 को ऐड करना होगा. ठीक है, तो अब ये n माइनस 1 के लिए मैं क्या करूंगा, मैं उस फंक्शन को n माइनस 1 की वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए मैं उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूंगा. सो पैटर्न विल बी द सेम, दैट फर्स्ट वैल्यू दैट इज n इज इक्वल टू 1 है तो रिटर्न n कर दो, और एल्स में लास्ट वाले दो नंबर्स के बीच की केमिस्ट्री आप अप्लाई कर दो. दैट पहला, दैट वैल्यू ऑफ n इज 5, वो 5 लगा दिया, प्लस and then the other number which is obtained by n minus 1, just send that number to the function. Okay, so in this way you can make this function as a recursive function. But now let me explain you that how this function is going to work. Okay, so the main thing is that we have to understand about the working scenario of this function, right? So let's take a black screen first and just activate a marker. Okay, now so you have seen that we have written the code like this. If okay, n is equal to 1, okay, then what will happen, let's do one thing, let me use a notepad for explaining you this. Okay, because
In this way it is very difficult. All right, so here's the notepad is with us. Okay, and now, so suppose when you call that function, you are sending the value of n as, suppose you are sending the value of n as 5. Okay, so suppose there is a stack also present. So how this stack is going to work? First, in the first phase of this execution, okay, phase 1, and in the phase 1 the value of n is 5. Okay, so when it comes over here, it checks whether the value of n is equal to 1. No. So the control will move to the else part, and they are going to return the result of this expression. Okay, and the expression is the value of n, that is 5, plus, and the call of the function addition, and the value of n minus 1, right? But basically they can't return the result right now because okay, they have 5 with them, but एडिशन 4 का तो आंसर अभी आया नहीं है ना. ठीक है जी भाई, पहले फेज 1 में क्या हुआ, जब फर्स्ट टाइम इसको कॉल हुआ तो n को वैल्यू मिल गई 5, हमने चेक किया n 1 के बराबर है नहीं, तो सीधा इस एक्सप्रेशन पे आ गए. अब सिस्टम ने क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसका रिजल्ट भेज देना है. बट द प्रॉब्लम इज दैट जब उसने इस एक्सप्रेशन को तैयार किया तो 5 n की जगह 5 लगा दिया, प्लस एडिशन और n माइनस 1 4 हो गया. बट जब ये एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तभी तो वो बेसिकली आंसर भेज पाएगा, और जब तक एडिशन 4 की वैल्यू नहीं मिलती तब तक वो 5 से ऐड करके तो भेज ही नहीं पाएगा. सो नाउ ये अब एडिशन 4 क्या करेगा, ये इस फंक्शन को अपने आप ही कॉल कर देगा दोबारा. देखो एक तो ये देखो एडिशन n से यहां से कॉल हुआ, मेन जगह से यहां से कॉल हो गया, और उसके बाद जब जब ये इस लाइन पे आएगा ये हर बार अपने आप को खुद ही कॉल करता रहेगा. सो इस टाइम पे इसने क्या करा, एडिशन वाले फंक्शन ने अपने आप को खुद ही कॉल कर दिया, बट इस टाइम वो क्या वैल्यू सेंड कर रहा है, वैल्यू सेंड कर रहा है 4. ओके, सो अब क्या होगा, अब फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा. अब फेज 2 के अंदर n को वैल्यू मिली है 4. ठीक है, अच्छा ये फेज 2 किसने इनिशिएट किया है, ये एडिशन 4 वाले ने इनिशिएट किया है, ये फेज नंबर 2. ओके, सो उस फेज नंबर 2 के अंदर n की वैल्यू गई 4. सो अगेन यहां पे वो चेक करेगा क्या n की वैल्यू इज इक्वल टू 1, नो इट्स नॉट इक्वल टू 1. सो एल्स पार्ट में आएगा. ऑब्वियसली एल्स पार्ट में इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके जो आंसर होगा वो इस एडिशन 4 को भेज देगा. तो जब ये एल्स पार्ट में आया एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी एक्सप्रेशन क्या बनी, राइट नाउ तो अभी n की वैल्यू 4 लेकर चल रहा है इस टाइम. सो 4 प्लस एडिशन एंड वैल्यू इज 3. बट अब यहां पे भी इसके सामने प्रॉब्लम क्या आ गई कि भैया जब इसके पास एडिशन 3 की वैल्यू होगी तभी तो उसको ऐड करके 4 से ऐड करके नीचे वाले को रिजल्ट भेजेगा. ठीक है, क्योंकि एडिशन 4 वाले ने ये फेज 2 को कॉल किया है, एडिशन 4 वाले ने ही इस फेज 2 को कॉल किया है जिसमें n को 4 वैल्यू मिली है. तो भाई अब फेज 2 जो रिजल्ट भेजेगा वो एडिशन 4 के पास आएगा, पर फेज 2 बेचारा भी रिजल्ट नहीं भेज पा रहा क्योंकि भैया यहाँ पे लिखा है 4 प्लस एडिशन 3. तो भैया जब एडिशन 3 की वैल्यू सॉल्व होगी तभी तो ये कॉल करेगा. तो इसने क्या करा, अब एडिशन 3 हुआ तो अब इसने क्या करा, एक और फेज स्टार्ट कर दिया, दैट इज फेज 3. अब इस फेज में n की वैल्यू क्या जा रही है, 3 चली गई है भाई. ठीक है, सो अगेन व्हेन इट कम्स टू द, तो फंक्शन को दोबारा खुद से ही कॉल कर दिया गया, यानी कि फंक्शन के अंदर से ही उसको कॉल करने के लिए एक और स्टेटमेंट आ गई, दैट इज एडिशन 3. सो दोबारा से ये फंक्शन कॉल हुआ, बट नाउ एट दिस टाइम द वैल्यू ऑफ n इज 3. सो इट विल अगेन चेक द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, नो. सो इट विल कम टू द एल्स पार्ट, और अब उसका काम क्या है, ये इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करे और एडिशन 3 को वापस भेज दें. लेकिन जब वो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने बैठा तो राइट नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 3 प्लस एडिशन 3 माइनस 1 2. अब ये स्टक हो गया क्योंकि भैया जब एडिशन 2 की वैल्यू इसको मिलेगी तभी वो 3 में ऐड करके नीचे भेजेगा. ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, पहले फेज 1 नीचे था, फिर अगली एंट्री फेज 2 उसके ऊपर आई, फिर अगली एंट्री फेज 3 उसके ऊपर आई. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, स्टैक हो रहा है ना, क्योंकि पहली एंट्री नीचे, फिर दूसरी एंट्री उसके ऊपर, तो उसकी नेक्स्ट एंट्री उसके ऊपर, तो सारी एंट्रियां देखो ऊपर ऊपर की साइड जा रही हैं. अच्छा, अब एडिशन 2 से कॉल हुआ,
अब एडिशन 2 ने जब दोबारा इसको कॉल करा तो एक नया फेज ऐड हो गया यहाँ पे, तो फेज 2 स्टार्ट हो गया एक। अच्छा, अब इस फेज 2 में वैल्यू जो गई है ऊपर एन की, वो गई क्या गई है, वो गई है 2। ठीक है, सो वैल्यू क्या गई है एन की ऊपर, 2 गई। सो नाउ अब एन की वैल्यू 2 चली गई ऊपर, तो वंस अगेन व्हेन द वैल्यू ऑफ एन इज 2, तो वो ये चेक करेगा इज वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 1, नो। तो ऑब्वियसली इस बार भी वो एल्स पार्ट में गया, और एल्स पार्ट में उसने क्या सॉल्व करना है, उसने वही सॉल्व करना है, दैट इज एन की करंट वैल्यू 2 प्लस एडिशन, और n माइनस 1 2 माइनस 1 इज 1। सो प्रॉब्लम है कि अब ये फिर अटक गया, क्योंकि भैया जब ये एडिशन 1 की इसको वैल्यू मिलेगी तभी वो 2 में ऐड करके उसको नीचे बेच पाएगा। ठीक है, सो अब ये एडिशन 1 से क्या हुआ, फिर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल हो गया। सो अब सॉरी, ये फेज नंबर 4 कह लीजिए इसको। ठीक है, सो फिर दोबारा से इस फंक्शन को कॉल हो गया, तो अब फेज 5 स्टार्ट हो गया इस फंक्शन का। अब इसमें n को वैल्यू क्या मिली है, 1। इस फंक्शन, इस केस में n की वैल्यू क्या गई है ऊपर, 1, क्योंकि एडिशन 1 से कॉल हुआ ना। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे n की वैल्यू कंपेयर करेगी, वो 1 के बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या किया, रिटर्न n। सो n की वैल्यू क्या हुई है, यहाँ पे n की वैल्यू है 1, तो इसने क्या रिटर्न कर दिया, इसने रिटर्न कर दिया 1। तो यानी कि एडिशन 1 ने जो ऊपर वाले जो फंक्शन को कॉल किया था, एडिशन 1 को आंसर क्या मिल गया है, 1। सो अब जब इसको 1 आंसर मिल गया है, तो ये 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, इसका सॉल्व हो गया। अच्छा, इस एडिशन 1 वाले को किसने कॉल किया था, अब ये एडिशन 1 वाले ने जो ऊपर कॉल किया था, इसको तो आंसर मिल गया 2 ना। ठीक है, अच्छा अब ये जो 2 रिजल्ट आया है, ये फेज 4 किसने इनिशिएट किया था, एडिशन 2 ने इनिशिएट किया था फेज 4। तो अब जो भी इसका आंसर मिला है वो नीचे पहुंचेगा। तो अब ये बेसिकली क्या है, 3 प्लस एडिशन 2 को आंसर क्या मिला, 2, तो ये कितना बन गया हमारा 5। ओके, सो अब ये रिजल्ट ऑब्वियसली ये फेज नंबर 3 को किसने इनिशिएट किया था, एडिशन 3 ने। तो फेज नंबर 3 का जो भी आंसर था, अब वो एडिशन 3 की जगह आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5 दैट इज 9। ओके, और अब जैसे सपोज मान लो, सॉरी एक गलती हो गई हमारे पास, यहाँ से 2 प्लस 1 यहाँ पे 3 था, और ये फिर इधर 3 जाएगा, सो ये बेसिकली अपना 6 हो जाएगा। और जब ये यहाँ 5 की जगह 6 जाएगा, तो 4 प्लस 6 ये 10 होगा। ठीक है, वहाँ से 1 आया था ना आंसर, तो 2 प्लस 1 3 होना था, हमने गलती से यहाँ पे 2 ही लिख दिया था। सो अब ये जो 10 आया है, अब ये फेज नंबर 2 ओवर हो गया। इस फेज नंबर 2 को किसने इनिशिएट किया था, एडिशन 4 ने ना। तो फेज नंबर 2 का जो भी आंसर था वो किस में गया, एडिशन 4 में। तो ये हो गया 5 प्लस 10 एंड इट इज इक्वल टू 15। सो आंसर विल बी 15। और फिर ये बेसिकली अब ये फेज 1 किसने स्टार्ट किया था, वो बेसिकली कॉल यहां से हुई थी उसके लिए। तो अब वो जो भी आंसर है 15 वो इसको मिल जाएगा, और आपको वो आंसर नजर आ जाएगा। तो अब जरा एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या वाकई में ये चल रहा है ठीक ठाक से कि नहीं। ठीक है, तो चलो F5 दबाया मैंने, सेव करने के लिए इसने बोलेगा, तो हम इसको कर देते हैं Q1 नाम से सेव कर देते हैं इसको। ठीक है, सो एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, वही 5 दे देता हूँ एक बार। तो एक एरर आ गई यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ एडिशन वाला जो फंक्शन जो बनाया ऊपर ना, उसकी स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है, तो जस्ट मुझे बस वो स्पेलिंग ठीक करनी है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल करना था ना, यहाँ पे इस एडिशन वाले फंक्शन की स्पेलिंग गलत कर दी थी। तो अब देख लो, ADDITION ADDITION। ठीक है, सो अब इसको रन करके देखते हैं। सो नंबर ऑफ टर्म्स मांगी मैंने, वही 5 पकड़ा दी इसको। सो यू कैन सी दैट द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 15 आ गया यहाँ पे। ठीक है, सो ये हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर लिया, और आप इसको नोट करना चाहें तो अपना नोट कर लीजिए। ठीक, नाउ इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जो बेसिकली क्या था हमारा, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसमें प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। राइट अ फंक्शन टू फाइंड सम की जगह टू फाइंड फैक्टोरियल
ऑफ अ नंबर। ठीक है जी। अच्छा अब तुम देखो यहाँ पे जैसे फैक्टोरियल कैसे निकलता है, जैसे सपोज मान लो अगर हमने नंबर दे दिया है 5, तो अब ये प्लस नहीं होंगे बल्कि ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर 120। ओके, तो अब जरा देखें। सो पहले यहाँ पे एंटर द नंबर, इंस्पायर्ड की नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं करना है, इस बार हमने नंबर मांगना है यूजर से, तो नंबर ले लिया। और सपोज अब उस फंक्शन को नाम हम दे देते हैं फैक्टोरियल ही नाम लिख देते हैं, सपोज का नाम हमने फैक्टोरियल रख दिया। और यहां पे आ जाएगा द फैक्टोरियल ऑफ जो नंबर है हमारे पास n, वो आ जाएगा, फिर देन इक्वल टू आ जाएगा, या हम ऐसे लिख देते हैं इज। तो जो भी फैक्टोरियल निकल के आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब जरा आते हैं फैक्टोरियल के कोड के ऊपर कि भाई कैसे काम करें। अब जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे n की वैल्यू आपको क्या दी गई है 5, क्योंकि अब पैटर्न वही रखा हमने। देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे वही इफ और एल्स का ही पैटर्न रहेगा हमारा। ठीक है, इफ और एल्स का ही हमने पैटर्न रखना है। देखो ठीक है, अब इसको कैसे करना हम लोगों ने कि n की वैल्यू मान लो 5 दे रखी है, तो हमने लास्ट वाली टर्म लिखी 5 और 5 इंटू 4 को लेकर चलेंगे, तो 5 हमारा n है, तो हमने बोल देंगे n मल्टीप्लाई बाय, और अगली टर्म कौन सी है n-1। ठीक है, 5 और 4 है ना, तो एक n इंटू n-1 हो जाएगा, और फर्स्ट टर्म क्या होगी 1। तो वही सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है तो आप रिटर्न कर दो 1, और अगर नहीं होती तो आप रिटर्न करो n मल्टीप्लाई बाय। अब मुझे फंक्शन को कॉल करना है। अच्छा, मैं फंक्शन का नाम अभी यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल। सो अब मैं n-1 के लिए क्या करूंगा, फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल करूंगा, फैक्टोरियल n-1। ओके, बस दैट्स इट। अब देखो ये भी किस तरह से वर्क करेगा, इसका भी हम एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं कि भैया इसका एग्जीक्यूशन का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, तो अपना वही नोटपैड वाली फाइल ओपन कर ली जो हमारे सपोर्टिव थी। अब इसी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे अब जरा जो फैक्टोरियल निकालने के लिए। ठीक है, तो सपोज n की वैल्यू मुझे दे रखी है यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल निकालना है। अब कैसे कैसे मैं इसको चलाऊंगा, देखो पहले जब n की वैल्यू यूजर ने इनपुट करी 5, उसने फैक्टोरियल वाले फंक्शन को कॉल किया और n की वैल्यू क्या मिली, उसे 5 मिली। उसने आगे चेक किया कि n 1 के बराबर है, नहीं, एल्स पे आया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक फेज 1 स्टार्ट हो गया। बेसिकली उसने क्या करना था, एल्स पे आके इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना था, बट इस एक्सप्रेशन के अंदर आप देखो तो ये एक्सप्रेशन ऐसे सॉल्व नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे एक फेज 1 स्टार्ट हो गया जिसमें n की वैल्यू हमारी 5 थी, और उस फेज में हमें क्या करना था, इस एक्सप्रेशन दैट इज 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1 दैट इज 4, ये सॉल्व करके भेजना था। अब प्रॉब्लम इज दैट कि एल्स पार्ट भाई n की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, तो एल्स पार्ट में आ गए। लेकिन जब एल्स पार्ट में आए तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करें, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि भाई अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मिलेगी तभी तो सॉल्व होगा। तो अब क्या हुआ, फैक्टोरियल 4 से दोबारा ये फंक्शन कॉल हो गया। ओके, सो अगेन अब जैसे फैक्टोरियल 4 ने दोबारा इस फंक्शन को कॉल करा तो एक फेज 2 स्टार्ट हो गया यहाँ पे, जिसमें n की वैल्यू क्या सप्लाई हुई, ऊपर 4। तो n की वैल्यू क्या आ गई 4। तो अब अगेन उसने चेक करा n इक्वल टू 1 है, नहीं, तो वो एल्स में आ गया, और एल्स में आके उसे क्या सॉल्व करना था, n की वैल्यू जो कि 4 है मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे भी उसके सामने आ गया जी फैक्टोरियल ऑफ 3 करो, क्योंकि n-1 3 होगा। अब प्रॉब्लम ये इसके भी आ गई यहाँ पे कि भाई जब वो एक्सप्रेशन को सॉल्व करेगा तभी इसका आंसर नीचे भेज पाएगा। ठीक है, उससे पहले तो वो भेज ही नहीं पाएगा। तो अब सो इन दैट केस अब क्या करे जाएगा, ये फैक्टोरियल 3 से दोबारा कॉल हुआ, तो एक और फेज नंबर 3 स्टार्ट हो गया। अब फेज 3 के अंदर क्या हुआ, अब n की वैल्यू क्या गई, ऊपर 3। तो अब इसने भी आके चेक किया कि n इक्वल टू 1 है, नहीं, तो एल्स पार्ट में आ गया। अब इसने सॉल्व करना था 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n-1 दैट इज 2। पर प्रॉब्लम इज दैट अब जब तक फैक्टोरियल 2 की वैल्यू इसको नहीं मिलती तब तक ये 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो है नीचे तो भेज ही नहीं सकता ना। ठीक है,
तो अब ये फैक्टोरियल 2 से कॉल हो गया दोबारा से, तो यानी कि अब एक और फेज 4 स्टार्ट हो गया। इस फेज 4 के अंदर n की जो वैल्यू चल रही है हमारी, ठीक है जी, वो n की क्या वैल्यू सप्लाई ऊपर 2 हुई, ठीक है, n की वैल्यू क्या आई 2। तो अगेन वो यहां पे आया, उसने चेक किया n 1 है, नहीं भाई एल्स में आ गया, तो वो भी लगा एक्सप्रेशन सॉल्व करने में कि 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ, अब n-1 1 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम इज दैट ये भी अभी आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि भाई ये भी अटक गया, क्योंकि जब तक फैक्टोरियल 1 नहीं मिलेगा तब तक ये आंसर सॉल्व करके नीचे प्रोवाइड कैसे करेगा। तो अब एक और फेज यहां पे स्टार्ट हुआ, दैट इज फेज 5, जिसमें n की वैल्यू हमने क्या रखी 1 गई, क्योंकि अब फैक्टोरियल 1 से कॉल हुआ ना। अच्छा, अब जब ये आएगा तो देखेगा n की वैल्यू 1 है, यस है, तो ये रिटर्न 1 करेगा, यानी कि इस वाले केस में अब कोई एक्सप्रेशन नहीं बनेगी, बल्कि एक वैल्यू नीचे सप्लाई करी जाएगी, दैट इज 1। तो इस फेज नंबर 5 को किसने एक्टिवेट किया था, ये फैक्टोरियल 1 वाले ने फेज नंबर 5 ऑन किया था, तो ये जो 1 वैल्यू है इस फैक्टोरियल 1 को मिलेगी। ओके, तो ये हो जाएगा अब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2, ठीक है। सो क्या हो गया यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2। सो अब 2 आंसर निकल गया। अब इस फेज 4 को किसने एक्टिवेट किया था, फैक्टोरियल 3 ने इस फेज 4 को इनिशिएट किया था ना, तो जो भी इसका रिजल्ट है वो यहाँ पे मिलेगा, फैक्टोरियल 2 को मिलेगा। तो अब 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2 को आंसर क्या मिला 2, तो ये 2 आ गया और आंसर विल बी 6। नाउ अब ये फेज 3 को किसने इनिशिएट किया था, फैक्टोरियल 3 ने, तो ये जो आंसर है फैक्टोरियल 3 को मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 12। ओके, एक मिनट, 2 and then 3 2s are 6, okay, over here we will 6 आएगी ना वैल्यू यहाँ पे। सो 6 4 the 24, बिकॉज वहाँ ऊपर 6 था ना, तो ये फेज 3 को किसने एक्टिवेट किया था, फैक्टोरियल 3 ने। तो फेज 3 का जो भी आंसर होगा, ठीक है, फेज 3 को किसने एक्टिवेट किया था, फैक्टोरियल 3 ने, तो फेज 3 का आंसर क्या था 6, तो ये 6 वैल्यू नीचे फैक्टोरियल 3 के पास जाएगी, तो 4 6 24 हो गया। अच्छा, अब ये जो बेसिकली क्या है हमारे पास, ये जो फेज नंबर 2 था इसको किसने इस वाले फेज 2 नंबर का आंसर क्या 24। अच्छा, इस फेज 2 को किसने स्टार्ट किया था, इस फैक्टोरियल 4 ने, तो ये 24 वैल्यूज फैक्टोरियल 4 को मिलेगी। तो यहां पे हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 24, तो इट विल बी 120। सो ये 120 जो आंसर है ये नीचे जहां से भी इस फंक्शन को एक्टिव कॉल किया गया था फर्स्ट टाइम, वहां पे ये चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट मी रन इट ऑल्सो। सो अब यहां पे इन्होंने हमसे नंबर मांगेगा, ओके। सो सपोज मैंने नंबर दे दिया वही 5, तो आंसर आ गया था फैक्टोरियल इज 120। ओके, सो आई होप आज आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा कि ये फंक्शन किस तरह से वर्क करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।